Hello dear students, today we are having exercise 7.4, the numericals that we have to solve in this video, that is question number 4, 5, 6, 7 and 8. In the earlier video, we have solved question number 1, 2 and 3. Kindly watch that video to understand question number 1, 2 and 3. So let's start with question number 4 first. So here we can see we have to find the equivalent fraction of 35 upon 49. So in that situation, it is just similar to question number 3 जैसे हमने उसमें देखा था. So here we have 35/49. In A part we are having the numerator 5. So that means equivalent fraction है तो हमें equal लगाना है यहाँ पे. Numerator we are having 5. So यहाँ पे 5 लिख दिया हम लोगों ने and denominator we don't know. So for that we are representing it as x. So just we are doing cross multiplication. हमने cross multiplication किया यहाँ पे. So we will get 35 multiplied by x is equal to 5 multiplied by 49. Now transpose this 35 to RHS side. So x is equal to 5 multiplied by 49 upon 35. So here you can see 5 ones are 5, 5 sevens are 35. So the answer is 7 sevens are 49. So the denominator that we will obtain, that is 7. So the equivalent fraction of 35 upon 49 in this case is equal to 5 upon 7. So the correct answer is 5 upon 7. Let's proceed to the next part of this question, that is B part. In B part we are having numerator, that is 15. Again we are having numerator, so just put like this 35 upon 49, this is the fraction, इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है. एंड न्यूमरेटर वी आर हैविंग 15, सो डिनोमिनेटर वी आर हैविंग x. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट. जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हियर यू कैन सी 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 49. देन अगेन ट्रांसपोज दिस 35 टूवर्ड्स RHS. वेरिएबल को यहाँ पे छोड़ करके बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज इट टू द राइट साइड. ठीक है. सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 15 इंटू 49 अपॉन, इसको हमने ट्रांसफ़र किया, 35 को ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया. सो हमने इसको डिवाइड किया. क्लियर. डिवाइड करते हैं. 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35. क्लियर. देन 5 3 ज़ा 15. सो द आंसर दैट वी विल ऑब्टेन इज इक्वल टू 3. लेट्स प्रोसीड टू C पार्ट नाउ. In C part we are also having the numerator. Okay, so similarly 35 upon 49 is equal to 20 upon x. Again cross multiply कर लें. So 35 into x is equal to 20 multiplied by 49. Then x is equal to 20 into 49. इस 35 को हम लोग RHS साइड में ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइड का 35. नाउ 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35. Then 5 4 ज़ा 20. So the answer is 4 into 7. 4 7s are 28. I hope you have understand this part now. Let's proceed to D part. In D part we are having denominator 14. So 35 upon 49 is equal to x upon 14. न्यूमरेटर वी डोंट हैव, वी आर हैविंग डिनोमिनेटर दैट इज 14. तो हमने डिनोमिनेटर 14 लिया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. जैसे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी विल बी हैविंग 35 इंटू 14 इज इक्वल टू x इंटू 49. इस 49 को अब RHS की जगह LHS ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारा कहाँ पे आ गया, RHS में. तो हम लोग क्या करेंगे, RHS में जो वेरिएबल है उसको वहीं रहने देंगे और वहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू को LHS की तरफ शिफ्ट कर देंगे. क्लियर. सो वी विल ऑब्टेन 35 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 49. ठीक है. तो हमने 7 से काटा, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35. नाउ 7 2 ज़ा 14. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, here we have 2 and here we have 5. So 5 2s are 10. Next we are having denominator 21. Let's see what will be happen, what will be the value of the x in E part. So here again 35 upon 49 into, sorry not into because equivalent fraction is there, so we will write equals is equal to x अपॉन 21. अब डिनोमीटर में क्या हो गया 21. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें
35 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल टू x। इसको 49 को यहीं नीचे रहने देते हैं, वापस लेकर आना पड़ेगा इसलिए इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। सो 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 and 7 5 जा 35. So here 5 and 3. So the answer is 5 into 3. So we will obtain 15. Then last part of this question is in which we are having denominator that is 28. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर 28 लेना है. So for that 35 upon 49 is equal to x upon 28. अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आसानी से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 28. इस 49 को यहीं रहने देते हैं, x सॉरी नॉट x दैट इज 49 इज इक्वल टू x. क्लियर. हम इसे काट दें, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28. हमारे पास क्या बचा यहाँ 4, यहाँ पे 5. So x is equal to 5 into 4. So the answer is equal to 20. I hope you have understand this 4 part, question number 4, each and every part of this question. Now let's proceed to question number 5 now. In fifth question, we have to check whether the following fractions are equivalent or not. In the earlier video, I have sent you that what is the equivalent fraction and how we will determine that. So equivalent fraction में क्या होता है, LHS और RHS की वैल्यू दोनों का जो फ्रैक्शन होगा वो इक्वल होना चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है. सो हियर वी कैन सी, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट है या नहीं है. सो ए पार्ट 7/11, 5/13, इसे हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो ये लोवेस्ट फॉर्म में ऑटोमेटिकली है, ये भी लोवेस्ट फॉर्म में है, तो दोनों इक्वल नहीं है. सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. सो द आंसर इज नो, द फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट. ओके, सो लेट्स टेक B part now and see that will be equivalent or not. 5/8 is equal to 30/48. अब हमें चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. सो फॉर दैट आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इनटू लोवेस्ट टर्म. सो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कट करेंगे. 5/8 इट इज़ ऑलरेडी इन लोवेस्ट फॉर्म. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 3 से काटें, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. So here you can see we are having 5/8 at LHS side and 5/8 in RHS side. So this fraction is equivalent fraction. That means B part is equivalent fraction, क्योंकि दोनों का जो फ्रैक्शन आया वो सेम आया. Now proceed to C part and देखते हैं कि उसमें ये वैल्यू इक्विवेलेंट है या नहीं है. So for C part, C 3/7 is equal to 24/56. इसे भी कट करें, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करें. So for लोवेस्ट टर्म में हमने कट करने के लिए काटा इसको. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. So here you can see 3/7 is equal to 3/7. So this is also equivalent fraction. Okay, now proceed to next part, that is D part now. In D part we are having 5/9 is equal to, we have to check is equal to 35/54 or not. So for that again I'm going to just convert in lowest term. So यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको. इट विल बी नॉट कन्वर्टिंग, दिस इज़ द लोवेस्ट फॉर्म. ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है, ये आपस में कटेगा नहीं. सो द आंसर ऑफ दिस डी पार्ट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन. सो दिस डी पार्ट इज़ नॉट इन फ्रैक्शन. ये डी पार्ट आपका जो है फ्रैक्शन में नहीं है. सो लेट्स प्रोसीड टू ई पार्ट नाउ. हम लोग ई पार्ट देखेंगे. ई पार्ट का जो वैल्यू है दैट विल बी इन इक्विवेलेंट और नॉट, वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. ओके, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग. ई पार्ट, इन ई पार्ट वी आर हैविंग 4/11 एंड 32/88. अब इसे हम कट करते हैं. तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. नाउ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16.
सो द वैल्यू दैट इज 4/11 इज इक्वल टू 4/11. ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्विवेलेंट. दैट मीन्स ई पार्ट इज इक्विवेलेंट. जो ई पार्ट में फ्रैक्शन है दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये कैसा फ्रैक्शन है आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया. नाउ लेट्स टेक एफ पार्ट. एफ पार्ट देखते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. ओके, सो इन एफ पार्ट वी आर हैविंग 9/27 एंड 25/100. दोनों को कट करें. 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3 एंड 3 3 9. तो हमारे पास आर एच एस जो आया, एल एच एस जो आया दैट इज 1/3. लेट्स सी. 25 1 25, 25 4 100. दैट मीन्स 1/4. They are not equivalent, so F part is not equivalent fraction. Let's proceed to question number 6 now. In this we have to just reduce each of the following in lowest term. Lowest term में reduce करना है. Clear? So 7/8 को लेते हैं. 7/28 that is A part. This is A part. इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करें. 7 × 7, 7 4 28. तो द आंसर इज 1/4. हमें ध्यान रखना है कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी हम कट कर रहे हैं वो सेम ही वैल्यू से होनी चाहिए. दैट मीन्स सेम मल्टीपल से होनी चाहिए. अगर ऊपर 7 से हम काट रहे हैं तो नीचे भी 7 से काटेंगे. अगर ऊपर 3 से काटेंगे तो नीचे भी 3 से काटेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद बी पार्ट दैट इज 11/55. बी पार्ट में 11/55 है. इसे कट करें. 11 1 11 एंड 11 5 55. Clear? So this is the lowest term of A and B part. Now C part. C part हमारे पास क्या है, 10/15. इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करें. सो 2 5 10, सॉरी 5 से काटेंगे इसको क्योंकि ऊपर 10 है नीचे 15 है. तो 5 2 10 एंड 5 3 15. सो इट्स लोवेस्ट टर्म इज 2/3. नाउ D पार्ट 9/14. ये ऑटोमेटिकली किस में है, लोवेस्ट टर्म में, क्योंकि 9/14 दोनों किसी और टेबल से नहीं कटेंगे, एक साथ किसी और टेबल में नहीं आते हैं. ठीक है. दिस वन इज नाउ लेट्स टेक ई पार्ट. ई पार्ट हमारे पास है 30/90. इसे हम कट करें. 30 1 30, 33 90. सो इसका लोवेस्ट पार्ट क्या हो गया, 1/3. लेट्स प्रोसीड टू एफ पार्ट नाउ. एफ पार्ट में देखते हैं क्या है हमारे पास. In F part we are having 21/35. So 21/35 मतलब 7 3 21 and 7 5 35. Then we are having 19/27. ये आपका ऑलरेडी किस में है, लोवेस्ट फॉर्म में है. इसको देखते हैं. Next is H part. In H part we are having 12/52. 12/52 को देखें. So 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6. So the answer is 3/13. This is the lowest term of this part. I hope you have understand the question number 6. Let's proceed to question number 7 now. In question number 7 we are having simplify each of the following in its lowest term. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसा ही होगा. सो लेट्स टेक वन बाय वन. सो फर्स्ट वैल्यू इज 75/85. ठीक है. सेवन्थ क्वेश्चन का ए पार्ट 75/85 है. तो इसे 5 से डिवाइड करें. दो लास्ट में क्या है, 5 है. तो 5 1 5, 5 5 25. देन हियर 5 1 5 एंड 5 7 35. सो इट्स आंसर इज 15/17. लेट्स टेक बी पार्ट नाउ. 36/60. इसे हम लोग 6 से काट लेते हैं. 6 6 36 एंड 6 10 60. फिर इसे काटेंगे, 2 से काटते हैं. 2 3 6, 2 5 10. So its lowest form is 3/5. Now we are having C part. In C part we are having the value 52/65. अब 52/65 ये किससे कटेगा, सोचिए, जल्दी सोचिए. 13 के टेबल से देखें.
13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, है ना। देखिए 13 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 इन ज़ा 4 1 5, ऐसे करते हैं आप लोग। बिल्कुल, टेबल याद नहीं करोगे तो यही होगा। सो फॉर लोवेस्ट टर्म वी नीड व्हाट, टेबल। हमें टेबल याद होना चाहिए, तभी हम लोवेस्ट फॉर्म नहीं को कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज लोवेस्ट टर्म नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू, बाकी का पार्ट आपको करना है, दैट इज़ योर होमवर्क। एंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी पार्ट यू विल आस्क। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू जस्ट डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? ए पार्ट कहा गया हमसे 1/2 ऑफ 18। इस ऑफ की जगह हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लाई। तो वैल्यू क्या हो गई? 1/2 इंटू 18। ठीक है, हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9, सो द आंसर इज 9। सिमिलरली इन बी पार्ट, बी पार्ट में हमारे पास क्या है? 1/3 इंटू 15, दैट मीन्स 1/3 ऑफ 15 है, तो इस ऑफ की जगह हम लोग क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 15, तो इसे 3 से डिवाइड कर दें। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, सो द आंसर इज 5। Similarly we are having next part, that is C part. In C part we are having 7/10 of 50, that means 10 5s are 50 and 5 7s are 35, so the answer of this part is 35. Similarly we are having D part. D में देखते हैं क्या कह रहा है वो। 7/8 ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई इंटू 24, सो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 इंटू 7, हमारे पास 3 और 7 बचा न्यूमरेटर में, तो हमने उसको आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट 3 7 ज़ा 21। देन वी आर हैविंग ई पार्ट 2/5 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5 कट गया, तो 2 1 ज़ा 2, दिस इज द आंसर ऑफ ई पार्ट। सिमिलरली इन एफ पार्ट 17/3 इंटू 51, 51 को 3 से डिवाइड कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 and now 17 into 17, so this you have to multiply, and the few parts that we are having remaining part, it is your homework, you have to solve this part. If you are having any doubt, any query, so you will just ask in the next class.